students, today's topic is Kirchhoff's law, 12th standard physics. Second law, algebraic sum of potential difference and EMF in a closed loop or a mesh is equal to 0. This law is based on conservation of energy and first law was based on conservation of charges. Now here, this is the combination of first law and second law. I have example. Now see, algebraic sum of potential difference means if this is the resistance and current flowing through it, V is equal to IR. This is called potential difference. So we can say the algebraic sum of potential difference and EMF in a closed mesh or a loop. This is the mesh and we have number of loops. Okay. So A, B, E, F, A. This is a closed loop and it contains two resistance. So we can say V is equal to IR. It will be I2 R2. It will be I1 R1. So we can say in a different way कि algebraic sum of current to the corresponding resistance. Algebraic sum of current to the corresponding resistances is equal to total EMF applied in that closed mesh. This is also this law. When you see algebraic sum of potential difference to the EMF is equal to 0. Here, if we travel from along the direction of current, the potential difference across the resistance considered to be negative. Why it happens so? See here. Now here the current is going from this side to this side. We can say this is the high potential and this is the lower potential. If you are coming down in a slope, okay, means you are coming down. That is a negative point. So in case when current we are going from high to low, you have to consider the potential difference is negative. When you go low to high, the potential difference will be positive. And potential difference is what? That is the current into resistance. So this is the high to low means negative. It is a low to high means we are going up. अपन चढ़ान जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी बढ़ रही है. तो डाउन आ रहा है तो एनर्जी कम हो रही है. तो ऐसा अपन मान सकते हैं. इसका EMF है E1, इसका EMF E2 है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव टर्मिनल. आप देखो यहाँ पे भी आप देखो हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऊपर जा रहे हैं हम लोग. तो ये वी विल कंसीडर एज अ पॉजिटिव. और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई टू लो आ रहे हैं, तो अपन क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव. ओके. सो इधर देखो आप, तो आपको दो पॉइंट तो याद रखने पड़ेंगे कि अगर हमारा लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेना, और लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना. ये याद रखना, यहाँ लिखा हुआ है मैंने. दूसरी बात है बैटरी में भी ऐसे लेना. अगर पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में लगाए जिस डायरेक्शन में करंट है तो इसको अपन माइनस लेंगे, तो प्लस लेंगे क्योंकि लो टू हाई जा रहे हैं और इसमें हाई टू लो जा रहे हैं, इसलिए इसको माइनस लेंगे. नाउ अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. इसका एक एग्जांपल करते हैं हम लोग एक क्लोज लूप लेते हैं ए बी ई एफ ए पे जाकर ही खत्म होगा. इधर देखिए आप, I2 करंट क्या बाहर की ओर आ रहा है, I1 करंट नीचे की ओर आ रहा है. तो दिस इज द जंक्शन लॉ. सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. तो अगर यहाँ पे करंट क्या बोलेंगे, I3 करंट है. अगर ये I3 करंट है तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 ये हो जाएगा. तो हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, I3 into R3. तो I3 के लिए क्या मतलब देंगे, I1 plus I2 into R3. So we have this closed mesh and we will consider two loop A, B, E, F, A. A, B, E, F, A is the one loop. A, B, C, D, E, F, A is the another loop. You can consider one more loop B, C, D, E, B. This also loop can you can consider. Now here आप देखो, यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं, मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं, एनर्जी बढ़नी चाहिए. तो we will consider E1 is the positive. जब इधर से इधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, यानी ऊंचाई से नीचे जा रहे हैं, हमारी एनर्जी कम हो रही है. तो हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे. तो E1 माइनस E2 एक पोर्शन हो गया. अब देखो आप, जब यहाँ से अपन यूं जा रहे हैं, मतलब करंट इज गोइंग दिस डायरेक्शन, बट हम तो यूं जा रहे हैं, हमारा लूप तो ऐसा है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं लूप में, तो हमारे लूप का डायरेक्शन ऐसा है.
लेकिन आप देखो करंट क्या आ रहा है, जहां से यहां आ रहा है, मतलब हम लोग कहां जा रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारी एनर्जी बढ़ रही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो सी दिस इज द पॉजिटिव, I2R2 इज द पॉजिटिव। अब यहां पर देखो आप, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, एनर्जी डाउन जा रही है, इसका मतलब इसको लेंगे नेगेटिव, तो यू विल गेट दिस इज द नेगेटिव। सो I1 E1 E2 I1R1 प्लस I2R2, अगर इसको इक्वल टू उधर ले आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है कि ये वाला अपन बड़ा लूप लेते हैं, मैश लेते हैं, तो क्या होगा है सेकंड। अब देखो सर, ये वाला लूप बेस को देखो आप, कहां जा रहे हैं, अपन यू जा रहे हैं, है ना, अपन यू जा रहे हैं, अपना भी डायरेक्शन वही है, और जो हमारी बैटरी है वो भी डायरेक्शन सेम है। तो देखो माइनस और ये प्लस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं, लो टू हाई, तो अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव, E1 को लेंगे पॉजिटिव। अब घूम के यूं आ गए अपन, अब I3 करंट किसके बराबर है, I2 प्लस I3, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इनटू R3, क्योंकि हमारा करंट क्या है, हाई से लो में जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हाई से लो में, जब नीचे उतरेंगे तो एनर्जी कम होगी, और प्लस ये क्या देखो, हाई से लो में जा रहे हैं, इसको भी माइनस लगाएंगे, तो दोनों माइनस लेंगे, ये दोनों माइनस लेंगे, ये प्लस कैसे हो गया। अब ये देखो आप अगर ये घूम के आते हो, ये क्या है, हाई से लो में जा रहे हैं, तो ये भी आपका माइनस रहेगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, और इस तरफ दूसरी प्लस ये ऊपर वाला माइनस ऊपर दिखाया है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस 0, और जब ये क्रॉस टुगेदर ले आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से हमारी इक्वेशंस बन जाती हैं, और हम लोग किसी भी सर्किट के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, EMF निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जब सॉल्व करना पड़ता है, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम किरचॉफ का सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग ये रूप लेते तो हमारा देखो माइनस से प्लस जा रहा है, तो इस बैटरी को प्लस ले लेते, घूम के जा रहे हैं, ये हाई से लो में जा रहा है, तो उसको माइनस लेते, और इसको भी माइनस लेते, क्योंकि ये हाई से लो में जा रहा है, ये हो जाता है माइनस I2R2, ये हो जाता है माइनस I1 प्लस I2 इनटू R3, और ये बैटरी जो है ये सिर्फ प्लस रहती, और इज इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व हम लोग कर सकते थे। तो इस तरह से किरचॉफ सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा। सो हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय स्टूडेंट्स।